Okay friends, so in a previous video we have discussed the characteristics of electric field lines. That was IMP question, and we have studied 6 or so characteristics of field lines, and also here figure has been provided. You can also draw these two figures for this. One is positive charge, this one is for negative charge. Here is the electric field is for dipole. You can see here the positive charge and equal negative charge. But the fourth one, here you can see in the last figure, it is the system of two positive charge. Hence, the electric field line does not cross each other nor terminate in another charge. They separates each other in their own individual path. So this can be drawn for system of the two positive charge. Okay, so I understand in the previous video you have understood that complete characteristics of electric field line. Now we are going to discuss a brand new topic. It is all new topic called electric flux. Okay, so let's first understand what is called flux. So flux is in other words called the cascading or stream. Okay, the better word is stream, the stream of water, like that. So Coulomb's law is fundamental law in electrostatics. We can simply apply Coulomb's law to find electric field at any point. We understand that. Okay, but here another equivalent of Coulomb's law is Gauss law. Gauss law is useful to determine electric field of the system of charge having symmetry. So we are going to discuss Gauss law, but before we go any further, we have to understand flux. So before we discuss Gauss law, we discuss concept of electric flux. So friends, let's see here what is electric flux. So before we understand electric flux, we have to understand the quantity called area. We know the area. Okay, we know the first thing that we know the displacement. You know the displacement, suppose it is x. Then displacement is a vector quantity because it is in certain direction. It requires direction just like it is in x direction or y direction. Hence जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट अगर टू डिमेंशन में हम जाए तो आता है एरिया. ओके, दिस इज एरिया. सपोज एरिया से ए, then area is also a vector quantity. Friends, must remember that area is a vector quantity, but how to indicate the vector? Like here displacement can be shown in certain direction, like certain direction in this direction, then this is a displacement in positive x direction, positive y, something like that. But area is vector quantity. How to denote the area vector? तो एरिया का जो वेक्टर होता है वो एरिया हम जो एरिया लेते हैं उसको उस सरफेस को परपेंडिकुलर होता है एग्जैक्टली दिस वे. सो दिस इज द वेक्टर ऑफ एरिया. ओके, एंड इट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस. आपको ये याद रखना है. और तो एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो वेक्टर है वो एरिया को परपेंडिकुलर होता है फ्रेंड्स. नेक्स्ट थ्री डिमेंशन में हम जाए तो आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके लिए हमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट और एरिया दोनों फर्स्ट डिमेंशन में जाए तो डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, सेकंड डिमेंशन में जाए टू डिमेंशन में जाए तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी. चलो, तो आपने समझ लिया कि जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो हम एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है. तो मतलब इसका जो वेक्टर होता है उसको परपेंडिकुलर, मतलब कि ये जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर रहेगा. ओके, इस तरह से कुछ यहाँ से अगर यहाँ पर हम जरा आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ऐसा आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो एरिया है उसका वेक्टर उसको परपेंडिकुलर रहेगा. अब हम समझते हैं फ्लक्स. व्हाट इज कॉल्ड फ्लक्स? तो फ्लक्स मतलब कि स्ट्रीम मैंने बताया आपको. चलो आप समझ लो, यहाँ पर एक स्ट्रीम है, पानी की स्ट्रीम है यहाँ पर. ओके, ये एक कनाल है
और कैनाल में पानी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, तो ये जो स्ट्रीम है उसमें वाटर है और इस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे यहाँ एक एरिया है, सपोज कि एक इमेजिनरी सरफेस और एरिया यहाँ पर लेते हैं, समझो कि ये एक हमारा प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन, और उसका जो वेक्टर है उसको परपेंडिकुलर, मतलब कि ये डायरेक्शन में रहेगा एरिया का वेक्टर। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आपको ये है कि ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, उसमें से कितना पानी फ्लो, मतलब उसके थ्रू कितना पानी फ्लो हो रहा है, तो आप बोलेंगे 0। ओके, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा, उसके ऊपर और नीचे से पानी फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू नहीं फ्लो हो रहा है। अगर यही एरिया को मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दूं, चलो ये हमारा एरिया इस तरह से मैं कुछ ड्रॉ कर दूं, हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और अब मैं आपको वही क्वेश्चन करूंगा कि हमारे एरिया में से कितना पानी फ्लो, मतलब उसके थ्रू से कितना पानी फ्लो हो रहा है, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम, बिकॉज अब जो पानी की स्ट्रीम है वो उसमें से पास होगी, हमारे एरिया से पास होगी, तो ये बन गया हमारा फ्लक्स। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पर फ्लक्स कितना है, तो मतलब उसके थ्रू पानी कितना जा रहा है, तो 0, तो हमारा फ्लक्स यहाँ पर बन गया 0। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स हमारे यहाँ बन गया 0। ओके, वही एरिया को हम अगर यहाँ परपेंडिकुलर रख दे, इस तरह से कुछ रख दे, ओके, तो मैक्सिमम उसमें से हमारा जो पानी है वो फ्लो होगा, तो फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। ओके, तो ये बन गया फ्लक्स। अब यही कंसेप्ट जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये जो वेक्टर्स है, रेड कलर के वेक्टर्स है, जिससे हमने बोला था पानी की डायरेक्शन, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और ये एरिया, तो हमारे एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसको कहते हैं फ्लक्स। तो चलो हम उसका इक्वेशन बनाते हैं वेरी इजीली। हमें फ्लक्स जो है उसका इक्वेशन बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, फ्लक्स का इक्वेशन बनाना है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जरा समझिए। चलो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कुछ लाइनें ले लेते हैं। चलो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन बन गई। चलो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो यहाँ लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में यहाँ पर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस डायरेक्शन में जा रही है। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है, और अब यहाँ पर हम एक इमेजिनरी एरिया लेंगे, और एरिया अलग अलग ओरिएंटेशन में लेंगे, और हम सोचेंगे कि उसमें से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। चलो तो हम यहाँ पर एरिया ले लेते। चलो तो मैंने पहले बताया था उस तरह से, चलो एरिया इस ओरिएंटेशन में है हमारा, जो हमने एरिया अज्यूम किया ये इस ओरिएंटेशन में है, तो हमारा जो एरिया का वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा एरिया का वेक्टर, राइट, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो अभी क्या हुआ कि ये जो एरिया का वेक्टर है वो परपेंडिकुलर के ऊपर की डायरेक्शन में है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है। ओके, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू से कितनी पास होती है, मतलब कि एरिया में से कितनी पास होती है, तो आप बोलेंगे 0 लाइन पास होती है। यहाँ पर आप इमेजाइन कर सकते हैं 0 लाइन कैसे, लेट मी शो यू दैट। इस तरह से हमें सोचना है, इस फिगर में आप देखिएगा। तो यहाँ पर जो ये फील्ड लाइंस है वो कैसे हमारे एरिया से पास होती है, इस तरह इमेजाइन करना है। तो समझो कि यही एरिया एकदम जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ऐसे होगा, तो उसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी, और हम कहेंगे फ्लक्स 0 है। ओके, चलो उसका ओरिएंटेशन स्लाइडली हम चेंज करते हैं। चलो कि हम ये प्लेन को कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ओके, अब हमारा एरिया का वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, मतलब कि ये डायरेक्शन में एरिया का वेक्टर है। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में है ही, उसके बिटवीन अब कोई थीटा एंगल बनता है, इसमें कितना था 90। ओके, यहाँ पर थीटा एंगल बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के वेक्टर में। चलो, तो अगर ऐसे कुछ ओरिएंटेशन होगा तो शायद कुछ फील्ड लाइन उसमें से पास होगी। अब उसको आगे रोटेट करते जाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। चलो रोटेट करके उसे एकदम ऐसे रख देते हैं पूरा। ओके, तो उसमें से जो फील्ड लाइन पास होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर एरिया के वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है।
तो ऐसे अगर हम ओरिएंटेशन कर देंगे तो मैक्सिमम फिल लाइन पास होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगर इस तरह से हम रख देंगे तो मैक्सिमम फिल लाइन हमारी यहाँ पर पास होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, एरिया का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पर एरिया का वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो इस तरह से आप कुछ सोच सकते हैं कि एरिया का वेक्टर जो है, चलो समझो एरिया का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। तो ज़्यादा मतलब फ्लक्स पास हो रहा है। यहाँ पर एरिया का वेक्टर उसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बीच के यहाँ पर कोई एंगल बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा और इस सिचुएशन में मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, वही बात हम यहाँ बता रहे थे। तो चलो पहली बात, हमें यहाँ पर फ्लक्स का इक्वेशन बनाना है। चलो समझो कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फ्लक्स मतलब ज़्यादा कब होगा, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइंस ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। पहली बात तो ये, तो फ्लक्स में एक आना चाहिए, ई की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। सेकंडली इसमें दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट रोल बनाती है, वो है हमारा एरिया। अगर हमारा एरिया भी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस उसमें से पास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू उसके अंदर से जाएगी। तो दूसरी बात कि हमारा एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, मतलब दूसरा हमारा इक्वेशन में आना चाहिए ई ए। ओके, चलो तो फ्लक्स का अगर हम इक्वेशन बनाए तो उसमें दो चीज़ें तो होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ज़्यादा फ्लक्स, ज़्यादा एरिया मतलब ज़्यादा फ्लक्स। दूसरी बात यहाँ पर आप देखिए, हमारा ओरिएंटेशन मतलब कि एंगल कितना बनता है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। चलो समझो कि यहाँ पर ये जो ए और ई है, मतलब जो वेक्टर है दोनों, यहाँ पर जो हमने प्लेन रखा है उस प्लेन में ए और ई के बीच में कितना एंगल है यहाँ पर, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है 90। ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 है, और जब ये थीटा 90 है तो फ्लक्स कितना है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे फ्लक्स जीरो है। ओके, हमारे प्लेन के थ्रू से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा। अगर ये जो प्लेन है उसको रोटेट करते हैं, हम रोटेट करते हैं और इस सिचुएशन में हम ला देते हैं, तो यहाँ पर एरिया जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल कितना है, तो वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल कितना है जीरो। तो अगर ऐसे हो जाए तो फ्लक्स कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा मैक्सिमम, फ्लक्स बन जाएगा मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पर हमें ई ए के बाद में साइन थीटा और कॉस थीटा लिखना है। चलो हम डिसाइड करते हैं साइन थीटा आएगा कि कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पर जब एंगल 90 है तो फ्लक्स कितना है जीरो, और यहाँ पर एंगल जीरो है तो फ्लक्स कितना है मैक्सिमम। तो मतलब जब थीटा जीरो हो तो कॉस या साइन में किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो हो तो कॉस वन होगा कि साइन वन होगा, तो कॉस, कॉस जो है वो जीरो ले लो आप, कॉस जीरो ले लो तो पूरी वैल्यू वन मिल जाएगी। और अगर आप कॉस 90 ले लो, कॉस 90 ले लो तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 कॉस पाई बाई टू मतलब कितना हो जाएगा जीरो। तो जब 90 एंगल बने तो फ्लक्स हमें कितना बना रहा है जीरो, दैट मीन्स हमें पीछे लिखना है कॉस। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया कॉस थीटा। तो हमारा फ्लक्स का इक्वेशन बन गया ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेड है, एरिया पर डिपेंडेड है, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है उस पर डिपेंडेड है, कॉस वाइज नॉट साइन वाइज। कॉस हमने क्यों लिया आपको पता चल गया, क्योंकि हमें जब थीटा जीरो हो तब मैक्सिमम लेना है, थीटा 90 हो तब जीरो लेना है, मतलब ये जो है वो हमें कॉस में मिलेगा, इसके ऑपोजिट होगा तो साइन में मिलेगा। चलो तो वेरी मच हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन गया, पर एक दिक्कत भी यहाँ पर है, थोड़ा आगे हम जाएंगे। अगर यहाँ पर कॉस बन जाएगा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और पीछे कॉस है, तो ये जो है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको पता है डॉट मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखने जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर, तो ये डॉट मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट्स वाई ये हमारा जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। ओके, क्योंकि ई डॉट ए उसकी वैल्यू में क्या लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा। तो आपको 11th में पता होगा शायद, मैं फिर भी आपको याद करा देता हूँ। समझो कि कोई आर क्वांटिटी है और हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ओके, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर बन जाएगा। इसकी वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, तो आर इज इक्वल टू लिखेंगे ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको 11th में पता है। सिमिलरली अगर यही बात हम ऐसे लिखेंगे, चलो ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ये जो आर है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और इसकी वैल्यू अगर हम लिखने जाएंगे तो बन जाएगी ए बी कॉस थीटा। तो ये वाली बात है हमारे यहाँ पर हमने यूज़ की है, आर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये जो फ्लक्स है वो बन गया ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा। ओके, चलो फाइन। अब जरा यूनिट की बात करते हैं। तो ई ए कॉस का तो कोई यूनिट नहीं बनता है, तो नंबर रहता है। तो ई जो है उसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम और एरिया जो है उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये हमारा यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट हम ये भी सोच सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका दूसरा यूनिट वोल्ट पर मीटर है, वो सेकंड चैप्टर में हम देखने वाले, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इनटू एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, दैट विल मेक वोल्ट मीटर। तो दूसरा यूनिट है वोल्ट मीटर। ये ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं, पर अभी जैसे हमने वोल्ट पढ़ा नहीं है, सेकंड चैप्टर में देखने वाले, तो अभी हम ऊपर वाला यूनिट देखेंगे। चलो, तो बात हो गई, ये फ्लक्स है उसको फाई से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वॉल्ट पर मीटर, और वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये हमारा बन गया फ्लक्स। आगे हम इक्वेशन और भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जो बात की थी ऊपर, यहाँ पर हमने जो बात की थी उसमें हमने लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर लिया था। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ई, और उसमें जो हमने एरिया लिया था वो एरिया भी हम कैलकुलेट कर सके ऐसा था, मतलब कि लेंथ और विड्थ जो हमारी थी वो हमें पता थी और एरिया जो था वो भी हमारा कांस्टेंट था। ये एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और हम ये ले सकते हैं। पर समझो कि अगर ऐसा नहीं और हमें ऐसा कोई रैंडम एरिया दिया जाए, ऐसे कोई रैंडम एरिया दिया जाए कि जिसका एरिया हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते, तो अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना हो तो ज़रा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा केस। तो ऐसे हमें अगर कोई रैंडम एरिया दिया जाए और उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, समझो कि पूरा केस कुछ इस तरह से हो, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समझो कि इस तरह से है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होगी और उसमें हमें कोई ऐसा एरिया दिया जाए कि जो रैंडम हो, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो थियोरिटिकली अगर हम सोचे ऐसे केस में क्या करना हो, वो थियोरिटिकली अगर हम सोचे तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, ये थियोरिटिकल बात है और उसे हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हर पॉइंट पे फ्लक्स जो होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें एक स्मॉल पार्ट यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। ओके, ये जो स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया उसका वेक्टर समझो कि इस डायरेक्शन में है और ये एरिया जो है वो वेरी स्मॉल है, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं डी ए। ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं डी ए। ओके, अगर समझो कि इतना स्मॉल नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ए, ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ए। डेल्टा मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समझो
ऐसे कुछ हमें दिया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड समझो कि ई है, ई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो हमने स्मॉल पार्ट कंसीडर किया था उसका हमें फ्लक्स मिल जाएगा। ऐसा कोई दूसरा एरिया ले लो, ओके, वहां से कितना, मतलब उसका भी एरिया चलो समझ लो कि डेल्टा ए जितना है, चलो कि पहला वाला डेल्टा ए1 था, ये डेल्टा ए2 है, ओके, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, उसका फील्ड मिल जाए। थियोरिटिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ऐसे पूरे जो ये पूरा एरिया है उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके, जितना भी पॉसिबल हो उतना स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एवरी पार्ट के लिए हम उसका फ्लक्स फाइंड कर दे और बाद में उसका एडिशन कर दे, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा कि हर जो स्मॉल पार्ट है उसका टोटल जो स्मॉल फ्लक्स है उसका एडिशन करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा, मतलब कि फ्लक्स फाई, टोटल फ्लक्स, मतलब पहले वाला एरिया, ओके। उसके लिए क्या लिख सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 डॉट, उसका एरिया होगा डेल्टा A1, ओके, डेल्टा A1। चलो दूसरा वाला जो एरिया है उसके लिए हम क्या फ्लक्स लिख सकते हैं, फ्लक्स का इक्वेशन तो पता है, E डॉट ए, यहाँ पर एक ही जगह डेल्टा ए लगते, चलो तो E2 दूसरे वाला जो पार्ट है उसके लिए डॉट, उसका एरिया डेल्टा A2, ओके। चलो उसके बाजू वाला कोई पार्ट होगा उसके लिए सेम E3 प्लस, सॉरी उसको लिखते हैं E3 डॉट डेल्टा A3। ऐसे हर एक स्मॉल पार्ट के लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करके उसको जितना भी फ्लक्स मिले उसका एडिशन करेंगे। तो यही बात को अगर हम लिखने जाए तो मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा ई डॉट डेल्टा ए, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और जो ये ई और ए है उसका नंबर मैं आई से रिप्रेजेंट कर दूँ तो आई जो है वो 1 से शुरू करके जितने भी है, मतलब n तक जितने भी उसका एडिशन करना है, मतलब E1 A1 आएगा, E2 A2 आएगा, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको अगर मैं इंटीग्रेशन में लिख दूँ तो यही एरिया हमने लिया था, वो एरिया अगर एकदम प्रिसाइसली वेरी स्मॉल होगा, मतलब कि स्मॉल एरिया होगा, उतना परफेक्ट फ्लक्स आएगा। तो यही जो एरिया है जो हमने ज़्यादा एरिया लिया था ना उसको हम स्मॉल एरिया में डिवाइड कर दिए, स्मॉल स्मॉल एरिया, तो वही एरिया को हम लिख सकते हैं डेल्टा की जगह डी, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, यही इक्वेशन बन जाएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब एडिशन, वही बात इंटीग्रेशन में एडिशन कहते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट, ये जो डेल्टा है उसकी जगह स्मॉल एरिया मतलब डी ए, हो गया हमारा फ्लक्स। और ये फ्लक्स का इक्वेशन आपको याद रखना है, आगे का कोई भी इक्वेशन याद नहीं रखना है, यही इक्वेशन यूजफुल है, ओके। ये वाला सब इक्वेशन याद नहीं रखना है, और जो बात थी वो सिर्फ समझने के लिए थी, अब हमें यही बात सिर्फ ध्यान में रखनी है। चलो तो मैं आपको ये पूरी बात, जो पूरी बात है मैं आपको एक दफ़ा ब्रीफली बता देता हूँ। चलो तो पहली बात कि हमने जो एरिया की बात की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इनिशियल बात की थी, समझो तो यहाँ पर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और हमारा प्लेन इस तरह से परपेंडिकुलर हो उसको, मतलब एरिया का वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ऐसी सिचुएशन हो तो फ्लक्स इजीली फाइंड हो सकता है। दैट इज सिंपल, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ई ए कॉस 0 बन जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है तो ई ए हो जाएगा। अगर कोई एंगल बनता है, मतलब इस तरह से कोई एंगल बनता है, ऐसे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल बनता है तो लिखने की जरूरत है कॉस थीटा, ओके। तो ये दोनों इक्वेशन कब यूज होते हैं, तो मतलब जब हमें इसे कैलकुलेटेड एरिया दिया गया हो और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, पर कोई भी रैंडम एरिया हो, ऐसे कोई भी रैंडम एरिया हो तो सिमिलरली फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, उसको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए,
ओके, इस तरह से लिखना है। और अगर वेक्टर फॉर्म में ये वाला इक्वेशन लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बस ये 3 इक्वेशन ही याद रखने हैं और ये हो गया हमारा फ्लक्स। तो फ्रेंड्स, जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी कुछ इमेजेस यहाँ पर है। आप समझिए कि चलो कि ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसको इमेजाइन करने के लिए ये हम सोच सकते हैं ये हमारा एरिया है, उसमें से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस थियरी में पता चल गया होगा। ये थियरी जो है उसमें एक बात मैं और बता दूं, जो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। ये हमारा फ्लक्स है, मतलब कि हमें जो सरफेस दी गई है, जो प्लेन दिया गया है, कोई भी एरिया दिया गया है, उसमें से कितनी फील्ड लाइन पास होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हमारा पहला इक्वेशन था ई ए। ओके, अगर एंगल को साथ में ले ले तो ई ए कॉस थीटा, अगर वेक्टर फॉर्म में जाए तो ई डॉट ए। और अगर हमें कोई रैंडम एरिया दिया गया हो इस तरह से, तो ये वाला कैलकुलेशन सब है, उसमें से कोई भी इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये रखना है ई डॉट डी। ओके, द फ्लक्स लाइन विथ एनी सरफेस इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर गिवन सरफेस। तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जो लिखने की जरूरत नहीं, आपको कभी पूछी जाएगी नहीं। सिर्फ हम ये बोल सकते हैं द फ्लक्स लाइन विथ एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लाइन है वो क्या है, इज द सरफेस इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस पर लेना है, तो सरफेस पे, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर गिवन सरफेस, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर गिवन सरफेस। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब यहाँ पर जो फ्लक्स है उसको लेकर हम नेक्स्ट आईएमपी और मोस्ट यूजफुल थियरी देखने वाले हैं, दैट इज गाउस लॉ। ओके, तो फ्रेंड्स, फ्लक्स में ये जो बताया मैंने आपको वो सिर्फ समझने के लिए, मतलब कि उसका इक्वेशन याद रखना है, थियरी प्रिपेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट पोर्शन में हम जो देखेंगे गाउस लॉ, वो आईएमपी थियरी, उसको हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो